So continuing with chapter 4, today our topic is motion of a charged particle in magnetic field. We know that when a charge is moving in an electromagnetic field, it experiences a launch force F, which is equal to the electric force plus the magnetic force F. ठीक है, ये आपने पढ़ा है इससे पहले. Now, this electric force F is equal to QE, where E is the electric field, plus Q V cross B, where V is the velocity of the charged particle, B is the applied magnetic field, and Q is the charge of the particle. If the charged particle is only moving in magnetic field, then this electric field will be zero. So then the force will be equal to Q, only it will be magnetic force, okay, V cross B, okay. Now that this can be written in a magnitude wise as F is equal to Q V B sin theta. Now if theta is equal to 0 or 180 degree, then sin theta, sin 0 or sin 180 will be equal to 0. So force acting on the particle which is moving at an angle 0 or 180, that is parallel V parallel B or V anti-parallel B, then no force will, because this is equal to 0, no force will act on the body. So if a particle is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field, charged particle is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field, it will feel no force. So there will be no deflection. Now, if theta is equal to 90 degree, that is V is perpendicular to B, then sin theta, sin 90 will be equal to 1, because theta is 90. So force acting on the particle will be equal to, force on the particle will be equal to Q V B, okay. Now V cross B. Suppose that a charged particle is moving with a velocity V in this direction, let us say positive charged particle, and this is the direction of the magnetic field B, and this is theta. Now V cross B, that is V is rotating towards B or moving towards B, then rotating. So then the direction of VB will be, as per the cross product law, it will be the perpendicular to both V and B, that is V cross B will be in this direction, okay. So that is the force, that means the force ये क्यों है, so this is the force F जो यहाँ पर हमने ये जो यहाँ पर आया है, force will be acting perpendicular to both B as well as velocity V. So force will be perpendicular to this. Now what about the work done by this magnetic force? Work done by magnetic force. We know that work done is equal to F dot ds, okay, or F dot s. S is the displacement. So W is equal to Fs cos of theta. Now displacement, as V is perpendicular to F or F is perpendicular to V, it means displacement is also perpendicular to force. ठीक है ना, क्योंकि F is perpendicular to V, that means because velocity V is equal to displacement by time. If time is equal to 1, then V is equal to S. So V is numerically equal to displacement. Then displacement is also perpendicular to S. That is theta is equal to 90 degree. Then work done, W will be equal to F into S, that is F cos, that is Fs cos of 90 degree. Cos of 90 degree is equal to 0, work done is equal to 0. So work done by the magnetic force will be equal to 0, okay. Yeah, this is very important.
No work is done by the magnetic force acting on the charged particle moving in magnetic field. Okay. Now, let us suppose that this we have applied a magnetic field B. ये जो क्रॉस दिखा रहे हैं हम, दैट मीन्स इट इज एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, दैट इज इनटू द, अगर आउट ऑफ होता तो ऐसे दिखाते डॉट से, तो ये इनटू यानी पेपर के अंदर जा रहा है. नाउ व्हेन अ चार्जड पार्टिकल एंटर्स, लेट अस से केस 1, व्हेन वेलोसिटी v is perpendicular to the applied field B. Okay, ठीक. Now what will happen? The particle will, let us suppose that here we have a particle having positive charge q, enters with a velocity v which is perpendicular to magnetic field अंदर है. So now मैग्नेटिक फील्ड जब इसके इस अंदर की डायरेक्शन में और ये तो वेलोसिटी मूव कर रही है, सो वेलोसिटी विल बी, we know that it will experience this magnetic force which will be perpendicular to the plane containing B and V. Now B inside है तो ये जब ये रोटेट करेगा ऐसे, तो A क्रॉस B का रूल अगर लगाएंगे ऐसे ये करता है तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल फील द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन. ओके. Again, let us suppose that it is here. Let us suppose this charged particle is here. इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, सो इसको ये इधर ले जाएगा, समझो ये इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन, अब फील्ड इधर, तो जब ये ऐसे घूमेगा क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे घूमेगा, सो इट विल हैव ये दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. Again, let us see it here. Force is in this direction, velocity will be in this direction. So force will be in this direction again. So the force यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर भी दिखा दें हम, देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर पहुंचता है पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है परपेंडिकुलर टू दिस, सो तो अगेन अगर इसको रोटेट करेंगे ये ऐसे रोटेट करेगा इन दिस डायरेक्शन ऐसे, तो जब एक आए तो फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ. सो एट एवरीवेयर द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, same point towards the center of what? The circular path. That means when a charged particle enters at perpendicular to B, the magnetic force points towards the center of the circular path. In other words, the particle will describe the circular path when it enters perpendicular to the magnetic field. Okay. Now, in order that body to be remain in circular path, there must be some centripetal force which is provided with this magnetic force. Now we know that centripetal force acting on a body of mass, ये जो body charged body इसका mass अगर m है तो it will be इसका magnitude होगा m, इसकी velocity v square by r. What is r? r is the radius of this circular path. ठीक है. Also F जो है it is provided by the magnetic force. हमने अभी देखा magnetic force किसके बराबर होता है? चार्ज VB. क्योंकि राइट एंगल पे है तो साइन 90 यहाँ पर नहीं लगा देंगे, वो 1 बनेगा. सो इक्वेटिंग दीज टू व्हाट वी विल गेट m v square by r is equal to QVB, और v and v will cancel out यहाँ, तो r will be equal to m by QB. This is the radius of the circular path, mv. ठीक है ना. नाउ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, देखिए यहां पर तो डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज हो रही है बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. दूसरा या एमवी किसके बराबर होता है? एमवी होता है मोमेंटम के बराबर. सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और मोमेंटम. सो ग्रेटर द मोमेंटम
अगर ज्यादा मोमेंटम या ज्यादा वेलोसिटी बॉडी की होगी, इट मींस दैट आर विल बी लार्जर, यानी बड़ा सर्कल होगा। अगर ज्यादा वेलोसिटी से एंटर होगा चार्जड पार्टिकल तो सर्कल की रेडियस बड़ी होगी, अगर कम वेलोसिटी से होगा तो सर्कल छोटा होगा। ठीक, क्यू और बी कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। ऑल्सो वी नो दैट V इज इक्वल टू आर ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? Omega is the angular frequency. Angular frequency. Okay. Now, if we substitute in this, we will get this. Let us say this is equation 3. So R V के बारे में लिखेंगे R omega. R will be equal to M V के बारे में R omega divided by QB. Or R and R will cancel out. So omega will be equal to QB by M. This is very, ये जो है QB by M, this is very important relation. देखिए angular frequency, देखिए it does not depend upon the speed of the body. यानी स्पीड जो भी है एंगुलर उसके इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज बॉडी का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया और मास, चूंकि ये कांस्टेंट रहते हैं, सो इट इज कांस्टेंट। बात जो अगर फील्ड जो का वैल्यू अगर हमने कांस्टेंट रखा, चार्ज भी कांस्टेंट और बॉडी का मास भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मीन्स साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इस पे एक डिवाइस इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन। वो आगे हम आगे पढ़ेंगे। ऑल्सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। व्हाट इज न्यू? न्यू इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यहां पर इसमें वैल्यू दे देंगे इस इक्वेशन में, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, सो दैट विल बी क्यू बी बाई 2 पाई एम। क्यू बी बाई 2 पाई एम, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। नाउ उसके बाद है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड T. What is time period? Time period is the total time taken by the charged particle to complete one circle. So time period is equal to, आपको रिलेशन पता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। सो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, जो भी हमने निकाला था यहाँ फ्रीक्वेंसी, ये जो निकाली थी, तो इसको जब हम ये रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये इट विल बी 2 पाई एम बाई क्यू, ठीक है। नाउ केस सेकंड, व्हेन द पार्टिकल, चार्जड पार्टिकल enters at some angle with the applied field, तब क्या होगा, ठीक। Let us suppose that we take the axis, this is y axis, this is z axis, okay, and this is x axis, ठीक है। Let us suppose that we have applied the field in this direction, in along x axis, ठीक है। Now, charged particle enters the field, this magnetic field जो हमने along x axis अप्लाई किया है, ठीक। तो ये x axis है, तो charged particle enter कर गया यहाँ, ठीक है, making some angle theta, entering with velocity v, making some angle. Then what will happen? This particle velocity will have two components. ये जो v यहाँ है, इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक तो होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट v परपेंडिकुलर, और दूसरा होगा v पैरेलल, ठीक है। बात समझ में आई? दैट दिस विल बी इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड होगा v cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होगा v sin थीटा, ठीक है। तो जब ये करेगी, हमने देखा जब पैरेलल होते हैं, जो पैरेलल अगर वेलोसिटी हो, पैरेलल जा रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि साइन 90 बनता है, तो साइन वो 0 बनता है, इट विल फील नो फोर्स। तो v पैरेलल की वजह से अगर हम इसको यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है और ये
v पैरेलल इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, तो पार्टिकल कोशिश करेगा कि वो सीधे स्ट्रेट लाइन में चला जाए। लेकिन अभी हमने देखा परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जब परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी तो बॉडी क्या करती है, सर्कुलर पाथ, तो इसमें साइमल्टेनियसली दो टाइप की मोशन आएगी। क्या क्या? एक आएगी सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से और इसकी वजह से लीनियर मोशन आएगी। ठीक, तो होगा क्या, पार्टिकल करेगा डिस्क्राइब क्या करेगा, वो करेगा सर्कुलर मोशन ऐसे। ठीक, एक तो वो चलेगा सर्कल में और लीनियर मोशन, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन क्या, सर्कुलर और साथ साथ जो है वो लीनियर मोशन आती है, तो इस जो ये बात है इसको कहते हैं हेलिक्स। ठीक है ना, तो फिर से बता रहा हूं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करवाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ सर्कुलर मोशन, और जो लीनियर पे कोई फोर्स ने कंपोनेंट पे कोई फोर्स है वो स्ट्रेट लाइन, तो दोनों जब साइमल्टेनियसली होगी जो पाथ ट्रेस होगा वो स्पाइरल जैसा, ठीक है ना, उसको कहते हैं हेलिक्स। ठीक है ना, और हेलिकल पाथ, सो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल विल ट्रेस द हेलिकल पाथ। नाउ इन दैट केस, अभी जब हमने इक्वेशन की थी दिस रेडियस की, r इज इक्वल टू वो जो अभी हमने देखा था, r इज इक्वल टू mv बाई QB, लेकिन चूंकि अब ये एंगल पे जाता है तो ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो कौन करवाता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है ना, तो हम v के बदले में हम अब v परपेंडिकुलर, तब ये क्या बनेगा, mv sin थीटा बाई QB। ठीक है, तो ये रिलेशन तब इसकी बनेगी रेडियस ऑफ दिस। ओके, अब इसका दूसरा है, बाकी इक्वेशंस जो रेस्ट है वो यही रहेंगी। ठीक है ना, नाउ अब है इसका पिच ऑफ द हेलिक्स, उसको लिखते हैं हम p, उसको क्या लिखते हैं हम p, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, ये है टू कंसेक्यूटिव सर्कुलर पाथ, ये इसको कहते हैं पिच। ठीक है ना, सो पिच इज इक्वल टू, यहाँ इस डायरेक्शन में कौन सी मोशन है, v पैरेलल, और टाइम कितना लगेगा एक सर्कल बनाने में, टाइम पीरियड, सो इट विल बी v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो v पैरेलल क्या है, v cos थीटा, टाइम पीरियड हमने निकाला था इनटू 2 पाई m बाई QB। ठीक है ना, 2 पाई m बाई QB। ठीक है, so it will be v cos theta into 2 pi m by QB. This will be the pitch of the helix. Okay. हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जिसका चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और उसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इस इलेक्ट्रॉन को हम डालेंगे एक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B, जो है मिसाल के तौर पर 3 दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है भाई, और जो ये इलेक्ट्रॉन जब इस मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो इसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁻7 मीटर, ठीक है, पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, ये जो वेलोसिटी और v परपेंडिकुलर है b के। अब मुझे बताए कि अब इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो क्या करेगा, क्योंकि v और b आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक, तो वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, जो हमें पता है। ठीक, अब जो वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा उसकी रेडियस क्या होगी, निकाल सकते हैं, यस हम निकाल सकते हैं, बिकॉज हमने रेडियस की निकाली है mv/r। ठीक है, mv/qb। ठीक है ना, ये हमने रिलेशन निकाली अभी। ठीक है, इसमें सबस्टिट्यूट वैल्यू करेंगे तो वो कितना आएगा, r m कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू वेलोसिटी है, ये दिया है 3, बहुत है उसकी वेलोसिटी 7, 3 इंटू 10⁻7, क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड कितना है 6 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, टेस्ला। तो रेडियस क्या होगी मीटर्स में, ठीक। तो जब आर हम निकालेंगे तो आर कम्स आउट टू बी, जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.26 मीटर विच इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेडियस आ गई। क्या हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं? वो भी निकाल सकते हैं। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम इसकी, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा, v द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2πr, ठीक है। कैसे? देखिए भाई, जब इलेक्ट्रॉन जिसको हम एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे वो सर्कुलर पाथ में चलेगा, उसकी रेडियस r होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है फ्रीक्वेंसी की? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय रिवॉल्विंग बॉडी इन 1 सेकंड, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, टाइम ही है वो भी, तो उसमें अगर पूरे एक रेवोल्यूशन जब करेगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस है, वो डिस्टेंस 2πr करेगा, ठीक है ना। सो वी नो दैट दिस टाइम पीरियड t। अब कैसे निकालेंगे? हमें पता है एक फार्मूला, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, और टाइम विल बी इक्वल टू s बाई v, ठीक है। तो s यहां पर कितना टाइम पीरियड में चलता है 2πr, ठीक है। तो s हो गया 2πr। तो वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी उसकी जो हमने निकाली थी वो, उसको हम, वो तो दी है यहाँ पर, तो भी लिखेंगे। तो हमारा जो ये फॉर्मूला बनेगी फ्रीक्वेंसी की ये, ठीक है ना। जब यहाँ देंगे 2πr यहाँ रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। सो फ्रीक्वेंसी कोड वेलोसिटी बाई 2πr, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज दे देंगे, ठीक। तो वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर दी है, ये 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 पाई इज 3.14 इंटू आर तो ये भी हमने निकाला 0.26, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हर्ट्ज में, ठीक है। तो जैसे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है। और एक ये जो 10⁻⁶ हर्ट्ज मीन्स 1 मेगा हर्ट्ज, सो इट विल बी इक्वल टू 2 मेगा हर्ट्ज, ठीक है।